लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections, Lok Nirnay 2024. In this program, we bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I am Kaushik Rai with my co-anchor Sonu Sood. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024 कार्यक्रम में चुनाव से जुड़े समाचारों के साथ साथ स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ करेंगे चर्चा। इसके अलावा चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे चुनाव तैयारियों के बारे में। आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं राजनीतिक विश्लेषक संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। The headlines: Election Commission meets stakeholders on heat wave preparedness. Top leaders of various political parties hold back-to-back rallies for second phase of Lok Sabha polls. Withdrawal of candidature for the third phase concludes today. चुनाव आयोग ने लू के संबंध में तैयारियों पर हितधारकों से बैठक की। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए रैलियां की और तीसरे चरण के लिए नाम वापस लेने की प्रक्रिया आज संपन्न हुई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन था। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान कराया जाएगा। इस चरण में गुजरात की सभी 26, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4, गोवा, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव की 2-2 सीट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। Election Commission has constituted a task force to monitor heat wave conditions before every phase of the Lok Sabha polls. The task force comprises of officials from Election Commission, IMD, National Disaster Management Authority and the Ministry of Health. They will review the impact of heat wave and humidity 5 days before each polling phase for any concerning developments and mitigatory measures. The Commission will also hold a separate review with the state chief electoral officers to ensure adequate arrangements at polling stations, including shamiana, drinking water, fans and other assured minimum facilities. The Director General of IMD has informed the Election Commission that there is no major concern with regard to heat wave for the second phase of the general elections scheduled for the 26th of this month. The weather forecast is normal for the 13 states and UTs going to polls in this phase. उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी दलों पर परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने कहा कि देश से गरीबी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म करने का यही सही समय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और देश के अल्पसंख्यकों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा देश में उद्योगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्होंने लोगों से वोट करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और फतेहपुर सीकरी में रैली को संबोधित किया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बुलंदशहर में एक रैली में आरोप लगाया कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो केवल दिखावा करती है। उसने केवल जुमलेबाजी की है और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने मथुरा और फतेहपुर सीकरी क्षेत्रों में प्रचार किया। Senior Bharatiya Janata Party leader and Union Minister Amit Shah has said that Naxalism is now on the verge of extinction in the country. Addressing an election rally at Kanker town of Chhattisgarh today, he assured that the BJP government is formed again at the centre under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, when Naxalism will be eliminated from Chhattisgarh in the next 2 years. He said that in the last 4 months of the formation of the BJP government in Chhattisgarh, more than 90 Naxalites have been killed, 123 Naxalites have been arrested, and about 250 Naxalites have surrendered. The Union Home Minister called upon the Naxalites to surrender and join the mainstream of the society, otherwise their destruction is certain.
Mr. Shah said that during the last 10 years, the Modi government at the centre has taken many steps for the welfare of tribals. He said that poor, tribals and backward classes have the first right on the country's resources. BJP National President JP Nadda is also addressing election rallies in Chhattisgarh today. समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने तेज प्रताप यादव को कन्नौज से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा पार्टी ने बलिया लोकसभा सीट से सनातन पांडे को टिकट दिया है। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी वर्ष 1998 से 2014 तक लगातार जीती है। In Manipur, repolling at 11 polling stations of Inner Manipur Parliamentary Constituency concluded successfully today. The repolling was conducted from 7 a.m. to 5 p.m. amid tight security arrangements. The voter turnout in the repoll till 3 p.m. was 73.05%. Repolling was held in 7 polling stations of Imphal East District and 4 in Imphal West District today, after the voting on April 19 in the first phase saw riots, violence and proxy voting. CEO Manipur submitted a report on the same to the ECI. Meanwhile, the election campaign for the second phase of Lok Sabha elections has intensified in Manipur. The polls for the 13 assembly segments of Outer Manipur Parliamentary Constituency will be held on the 26th of April. गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। NCP President Ajit Pawar today unveiled the party's manifesto for the upcoming Lok Sabha polls, promising that all efforts will be made to make Maharashtra a $1 trillion economy. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Pawar, along with senior leaders Praful Patel, Sunil Tatkare and Sagan Bhujbal, said that the manifesto has been drafted keeping in mind the welfare of every section of the society. The manifesto extends support for the minimum support price to farmers. It favors the widening of the scope of agricultural crop insurance scheme and making efforts to reduce the dependency of farmers on conventional sources of power by making a gradual shift towards solar and hydropower energy. So, Santoshji, thank you for joining us in the studios today. 3 important takeaways from what we saw in the news today. The Election Commission convening meeting with the stakeholders to battle heat wave. And, of course, election campaigning is on full throttle, if we can say that. And we also saw that the BJP has indeed opened its account in the 18th Lok Sabha polls for the 2024 elections by winning the Surat Parliamentary Assembly constituency, and the NCP Ajit Pawar group has also unveiled the party's manifesto. So, firstly, this is indeed a welcome meeting that the ECI had with all the stakeholders, and of course, we are not that deep into summer now, but yes, these are welcome measures, whatever the stakeholders have decided, and we would like your opening comments on this. देखिए, निश्चित तौर से हीट वेव को लेकर के जिस तरीके से एक चिंता कुछ समय पहले से जताई जा रही है और आईएमडी की ओर से भी एक जारी की गई थी कि अप्रैल से जून के बीच ये स्थिति रहेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि ये लोकतंत्र का एक महापर्व है और इसमें भागीदारी बहुत अधिक बढ़े, ये सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से आज जिस तरीके से बैठक हुई और इससे पहले भी लगातार बैठकें हुई, और मैं जहां तक मेरी जानकारी है कि आईएमडी के साथ सिर्फ वीकली या मंथली ऐसा नहीं हो रहा, डेली यानी रोजमर्रा इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है, सारे पूर्वानुमान उनको बताए जा रहे हैं और उसके आधार पर चुनाव आयोग जो मेजर्स ले रहा है कि जिन जिन इलाकों में इस तरह की चीजें हीट वेव की संभावनाएं हैं, वहां जैसे आइस पैक हो, ओआरएस के पैकेट्स हों या फिर अन्य तरह के जो सेट्स बनाने हों, बहुत तरह की तैयारियां जो होनी चाहिए, जो लोगों को जागरूक करे, लोगों को वहां तक मतदान केंद्र तक ले जा सके, इसकी पूरी तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की रैलियों में व्यस्त हों, लेकिन अगर आपको याद होगा कि 11 अप्रैल को उन्होंने अलग से एक हाई लेवल मीटिंग ली थी इसके ऊपर, यानी सबकी चिंता है, प्रधानमंत्री के स्तर पे भी,
चुनाव आयोग के स्तर पे भी, और इसको लेकर के जो एक अनुमान है उसको लगातार लोगों को बताया जा रहा है, साथ में तैयारियां भी बताई जा रही हैं, कितनी तैयारियां हैं। जो उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में बहुत बड़ा विषय है, और इसको लेके पिछले 10 साल में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी जागरूकता आई है। लोगों ने भी समझा है कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं, और ये अनुमान जिस तरीके का था, मतलब जिस तरीके की पहले मौसम रहता था, उसमें एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की तैयारियां अगले चरण में इस चीज को वोट परसेंटेज को बढ़ाने में रिफ्लेक्ट करेंगी। इनफैक्ट ये बहुत ही प्रोएक्टिव और प्रोग्रेसिव अप्रोच है कि बीच में भी मीटिंग्स हो रही हैं, और क्या क्या सुधार अभी भी हो सकते हैं और बढ़ाने के लिए वोटर परसेंटेज, उस पर गौर किया जा रहा है। आपको लगता है कि पोल टाइमिंग्स को एक्सटेंड करना एक विकल्प है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज का आउटरीच है उसको और बल देना वो भी एक विकल्प है जिस पर और गौर किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर से पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी ओर से पूरे प्रयास करती है कि वे अपने मतदाताओं को, अपने सपोर्टर्स को वो बूथ तक लेकर के जाएं, वोटिंग कराएं। लेकिन चुनाव आयोग भी ये सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि देखिए पहली बार इस देश में इतनी बड़ी एक्सरसाइज होने जा रही है, जो मैंने पिछली बार भी कहा था, ये प्लैनेट का सबसे बड़ा एक्सरसाइज माना जा रहा है। तो ऐसे में अगर हमारा वोटर टर्नआउट पिछली बार से कम हो जाता है, तो निश्चित तौर से वो एक अच्छा संदेश देने वाला नहीं होगा। ऐसे में चुनाव आयोग की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है, और चुनाव आयोग निश्चित तौर से न सिर्फ वो बूथ पे या बाकी जगहों पे तैयारी कर रहा है, वो लगातार आईएमडी के साथ, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके साथ लगातार संपर्क में है, उनके अधिकारी लगातार संपर्क में हैं, और उसके उनकी मतलब सलाह पे, उनकी रिपोर्ट के आधार पे जो भी मेजर्स लिए जाने चाहिए उससे अत्यधिक ही प्रयास किए जा रहे हैं, जहां तक मुझे दिख रहा है। जी बिल्कुल। एंड every voter is a stakeholder in democracy, and we should definitely exercise our franchise on the day of voting. अभी जैसे इन्होंने पढ़ा कि एनसीपी मैनिफेस्टो आज रिलीज हुआ है, और उसके जो मुख्य बिंदु पढ़े कौशिक जी ने, तो आपसे जानना चाहेंगे संतोष जी, आप क्या कहेंगे, मैनिफेस्टोज में कौन कौन सी ऐसी खास बातें होती हैं जिन पर वोटर्स की नजर टिकी होती है? देखिए, हर चुनाव में हर पार्टीज अपने अपने तरीके से घोषणा पत्र जारी करती है, और वो अपने वादे उसमें बताती है कि हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। निश्चित तौर से एनसीपी का जो मैनिफेस्टो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर से महाराष्ट्र के संबंध में, क्योंकि वो महाराष्ट्र में एक इस बार का जो चुनाव है वो अपने आप में अलग तरह का संदेश देने वाला है। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में क्या है कि इस बार अजीत पवार अपने जो पहले मूल पार्टी जो एनसीपी जो शरद पवार लेके चल रहे थे, उस धड़े को अजित पवार लीड कर रहे हैं, और जो शिवसेना का धड़ा था जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में था, उसको अब एकनाथ शिंदे लीड कर रहे हैं। यानी अजित पवार और एकनाथ शिंदे मुख्य पार्टी के रूप में आ चुके हैं, और भाजपा के साथ उनका अलायंस है, गठबंधन है। तो वहां उन्होंने अपनी तरफ से एक मैनिफेस्टो ला करके दिया कि भाई हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी ओर से क्या करेंगे, और निश्चित तौर से गठबंधन में रहते हुए उन वादों को ये लोग निभाने की कोशिश करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक संदेश जाए कि हमारा जो गठबंधन है वो एक सुर में एक साथ में चल रहा है। जी बिल्कुल। और अब कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोफाइलिंग आप तक लाएंगे बागपत, उत्तर प्रदेश की बागपत कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में ओम अवस्थी जी। बागपत लोकसभा सीट पर 9,70,210 मतदाता 26 अप्रैल को 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 5,27,802 पुरुष मतदाता और 4,42,372 महिला मतदाता हैं, जबकि 34 अन्य मतदाता भी शामिल हैं। बागपत लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटें, बड़ौत, बागपत, छपरौली, मेरठ जिले की सिवाला खास तथा गाजियाबाद जिले की मोदीनगर विधानसभा सीट शामिल है। इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार का दबदबा रहा है। बागपत में इस परिवार के सदस्य 9 बार सांसद चुने गए हैं, लेकिन पिछले 10 वर्ष से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार भाजपा और रालोद के गठबंधन के बाद बागपत सीट पर समीकरण बदल गए हैं। गठबंधन के बाद रालोद के हिस्से आई इस सीट पर रालोद ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता डॉक्टर सांगवान चौधरी परिवार से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा कर चुके हैं। इस सीट पर सपा ने पहले अपने
पुराने कार्यकर्ता मनोज चौधरी को टिकट दिया था, लेकिन भाजपा रालोद गठबंधन के बाद बदले समीकरण को देखते हुए सपा ने मनोज चौधरी का टिकट काटकर इस सीट से साहिबाबाद के पूर्व विधायक पंडित अमरपाल सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने प्रवीण बंसल को टिकट दिया है। पंडित अमरपाल शर्मा और डॉक्टर राजकुमार सांगवान दोनों ही गैर जनपद से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ सभी प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार तेज कर दिया है। So, Baghpat seat, very important seat in western Uttar Pradesh. For the last 10 years, it was held by Satyapal Singh of the Bharatiya Janata Party, and now this has gone to Rashtriya Lok Dal. So, what is your assessment about Baghpat? देखिए, बागपत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। अगर आप महाभारत काल में देखेंगे तो माना जाता है कि लाक्षागृह जो हुआ था, लाक्षागृह का निर्माण यहीं पे हुआ था, ये जो घटना हुई थी। तो 1967 में अगर आप इस सीट की जो अस्तित्व में आने के बाद जो है ना, पहली बार ये सीट जनसंघ ने जीती थी। लेकिन उसके बाद जब चीजें बदली, उसके बाद कांग्रेस आ गई, उसके बाद 77 में और उसके बाद से लगातार 3 बार चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इस सीट का नेतृत्व किया और वो प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी कह सकते हैं कि देश के वो एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री के रूप में संसद का मुंह नहीं देखा। तो एक निश्चित तौर से उस समय कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया था, कांग्रेस ने समर्थन वापसी ले ली पहले ही। और अगर मैं ये कहूं कि अभी जो प्रधानमंत्री की ओर से, इस सरकार की ओर से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है, उसके बाद समीकरण बदले हैं और आरएलडी और भाजपा के बीच एक गठबंधन हुआ और वो उस गठबंधन में सीटें जो है आरएलडी को दी गई। जैसा बताया कि राजकुमार सांगवान को टिकट दिया गया है आरएलडी की ओर से, और इससे पहले 2 बार भाजपा ने ये सीटें जीती हैं और उनको हराया है। इस जाटलैंड वाली, इन बागपत को एक जाटलैंड की सीट कही जाती है। इस सीट पे चौधरी अजीत सिंह भी और जयंत चौधरी भी दोनों चुनाव हारे हैं और सत्यपाल सिंह से ही हारे हैं। लेकिन चूंकि इस बार गठबंधन का एक था मामला, तो गठबंधन को ये सीटें दे दी गई हैं और निश्चित तौर से इस गठबंधन का फायदा आरएलडी बीजेपी गठबंधन को होगा। और इस सीट पे अगर मैं कहना चाहूं तो चूंकि चुनाव का जो समीकरण है वो इनके पक्ष में जाता हुआ फिलहाल तो दिख रहा है। Right. And from Baghpat we go over to the Bengaluru rural Lok Sabha constituency in Karnataka. This report by Sudhindra. Bangalore Rural Lok Sabha constituency, as the name suggests, consists of areas on the periphery of Bengaluru city. It has semi-urban settings. It came into existence after delimitation in 2008 after abolishing the previous Lok Sabha constituency of Kanakpura. Out of 28 seats in Karnataka, this was the only seat won by Congress candidate D.K. Suresh in 2019 election. D.K. Suresh is the brother of Congress strongman D.K. Shivkumar, the Congress state president. D.K. Suresh was the alliance candidate supported by JDS in the previous election. With 64.89% voter turnout, D.K. Suresh had defeated BJP candidate Ashwath Narayan Gowda with a margin of 2,06,870 votes, securing over 54% of the votes cast. The constituency has, in its geographical area, the 8 assembly segments of Kunigal, Anekal, Magadi, Ramnagaram, Kanakpura, Chanpatna, Rajarajeshwari Nagar and Bangalore South. Out of them, 5 were won by Congress candidates and 2 by BJP in the assembly election last year. One seat of Chanpatna was won by JDS leader H.D. Kumaraswamy, who has allied with BJP in this election. BJP has fielded Kumaraswamy's brother-in-law, Dr. C.N. Manjunath, as its candidate from the seat. There are 15 candidates in fray from Bangalore rural seat. Apart from Congress and BJP, there are 10 candidates from the registered unrecognized parties and 3 are independents. The number of registered voters from the constituency are 28,02,580 and the share of young voters is 55,771. इस हाई प्रोफाइल जो सीट है बैंगलोर रूरल की, इसमें जो ब्यूटी है डेमोक्रेसी की वो बहुत अच्छी तरह सामने आती है कि कैसे कोलिशंस होते हैं। और जो डॉक्टर सीएन मंजूनाथ हैं वो बीजेपी की टिकट से हैं, जबकि वो सन इन लॉ है एच.डी. देवे गौड़ा के और ब्रदर इन लॉ है कुमारस्वामी जी के, जो जेडीएस के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है कि डीके सुरेश जो है कांग्रेस के, वो फिर से यहाँ पे विजयी हो सकेंगे? ये
देखिए, इस बार जो बैंगलोर रूरल जो सीट है, जैसे अभी आपके संवाददाता ने बताया कि 28 सीटों में से एक सीट है और 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी और पहली बार एचडी कुमारस्वामी जो जेडीएस के हैं, वो पहली बार इस सीट का नेतृत्व उन्होंने किया था, सांसद बने थे। लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद बाई इलेक्शन में ये सीट कांग्रेस को गई और उसके बाद से लगातार 2 बार कांग्रेस के पास रही और अभी डीके सुरेश इस सीट का नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में, जो आपने भी बताया कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो एचडी देवगौड़ा हैं और एचडी कुमारस्वामी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये एचडी देवगौड़ा के दामाद हैं डॉक्टर सीएन मंजुनाथ और कांग्रेस के डीके सुरेश। निश्चित तौर से इस बार बीजेपी, चूंकि ये सीट बीजेपी ने जीती नहीं है, कभी जब से अस्तित्व में ये सीट आई है बीजेपी ने कभी जीती नहीं है, यानी एक बार जेडीएस का कब्जा रहा है, बाद में लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है 2 बार और एक बाई इलेक्शन में कांग्रेस का कब्जा हो गया। तो आज की स्थिति में मैं कहूं तो चूंकि जो एक ये कर्नाटक का इशू है उसमें सीएन मंजुनाथ, चूंकि कॉलिशन, आपने भी कहा ना कॉलिशन, जो खूबसूरती वाली बात कही है कि पहले उनके साथ अलायंस था, अब अलायंस यहां पे है, तो इस अलायंस का एक फायदा मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भाजपा को दिखेगा। लेकिन इस सीट पर आसान राह दोनों में से अभी किसी की नहीं दिख रही, बहुत कड़ी टक्कर कही जा सकती है इसको। और आइए अब चलते हैं जोधपुर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान से, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र द्विवेदी। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभाओं की संयोजन से बना है, जिसमें फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, सरदारपुरा, जोधपुर, सूरसागर, लूणी और पोखरण शामिल हैं। जोधपुर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र का एक बड़ा भूभाग भी इस सीट का हिस्सा है। इस सीट पर कुल 21,32,000 से ज्यादा मतदाता है, जिनमें 11,15,000 से ज्यादा पुरुष, 10,16,000 से ज्यादा महिलाएं और 47 ट्रांसजेंडर हैं। इस सीट पर आजादी के बाद हुए 17 चुनाव में 8 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा और 4 बार अन्य पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 बार जीत दर्ज कर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इस बार इस सीट पर कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। भाजपा ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो 2014 और 2019 के चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने नए चेहरे के रूप में करण सिंह उचियाडड़ा को मैदान में उतारा है। श्री शेखावत इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के प्रयास में जुटे हैं। वहीं उचियाडड़ा ने उनके विजयी रथ को रोकने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है। और अब चलते हैं भोपाल, जहां से हमारे क्षेत्रीय संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियों और इस चरण में प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों और उम्मीदवारों के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में जैसे कि आप जानती हैं 6 सीटों पर चुनाव होगा। इनमें होशंगाबाद है, टीकमगढ़ है, रीवा, सतना, खजुराहो, दमोह है। कुल 80 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 75 मेल है, 4 फीमेल है और एक जो इंटरेस्टिंग बात है, थर्ड जेंडर से भी एक उम्मीदवार है दमोह से। इस दौर की अगर बात करें तो इन 80 उम्मीदवारों में से 26 करोड़पति हैं। करीब 17 उम्मीदवार ऐसे जो 10वीं पासवीं ली है, 13 उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं और 21 पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो खजुराहो से उम्मीदवार हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार है, वो टीकमगढ़ से हैं। और वीडी शर्मा का चुनाव इस तरह से वॉकओवर माना जा रहा है क्योंकि वीडी शर्मा खजुराहो से उम्मीदवार है और यहाँ चूंकि खजुराहो सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी थी और समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार थी मीरा यादव, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, तो एक तरह से वॉकओवर मान के चल रहा है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने फॉरवर्ड ब्लॉक के एक उम्मीदवार है उनको सपोर्ट किया है, लेकिन वीडी शर्मा की वॉकओवर की है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार टीकमगढ़ से है और वो स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का, इसलिए उम्मीद है कि वहाँ चुनाव ठीक होगा। दमोह से दुर्गा देवी के खड़े होने से, दुर्गा मौसी के खड़े होने से, थर्ड जेंडर की उम्मीदवार है, थोड़ा सा चर्चा में है, लाइमलाइट में वो ये सीट आ गई है। बाकी यहाँ बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। रीवा और सतना में पुराने सांसद जो है उनको रिपीट किया है बीजेपी ने और दोनों की पोजीशन ठीक है। संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और आपका ब्रीफ सा कमेंट, क्या लगता है आपको बीजेपी का वर्चस्व वहां बना रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव, विधानसभा चुनाव हाल ही में जब हुआ था तो आपने देखा होगा था कि तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी इस बार नहीं आ रही है, बीजेपी हार जाएगी चुनाव वहां पे। लेकिन बीजेपी ने बहुत मतलब सारी जितनी भी धारणाएं थी, जितने भी लोगों के कहते हैं सर्वेस थे, सबको पीछे छोड़ दिया था और वहां पे बहुत शानदार विजय जीत हासिल की थी बीजेपी ने। तो निश्चित तौर से बीजेपी के लिए जो मध्य प्रदेश का इलाका है
उसमें एक जो हमेशा माना जाता है छिंदवाड़ा, जो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ अभी लड़ रहे हैं, उसको माइनस करके बाकी सीटें बीजेपी जीतती रही हैं। और एक जो खासतौर से भोपाल की सीट है, भोपाल की सीट पे आपने देखा होगा पिछली बार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उतारा गया था और सामने दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता थे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने वो सीटें 3 लाख वोट से जीती थी। यानी ये एक ऐसी सीट मानी जाती है जो सबसे सेफेस्ट सीट है बीजेपी की। और यहाँ पे इस बार अभी 9 बार से बीजेपी वहां जीतती रही है। अभी आलोक शर्मा और कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव हैं वहां पे अभी उम्मीदवार के रूप में। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत ही मैं कहूंगा कि सकारात्मक माहौल है भाजपा के लिए। एंड नाउ वी गो टू आवर रीजनल न्यूज यूनिट मुंबई फॉर द election scene in Maharashtra. Prarthana, please can you tell us about the second phase of elections in Maharashtra and the key constituencies and candidates in this phase? Yes, Kaushik. So a total of 8 constituencies from Maharashtra will be voting in the second phase, which is scheduled on 26 April, that's coming Friday. A total of 204 candidates will be in the fray. Polling will be conducted over 16,589 polling stations, and the total number of voters here is around 1,50 lakhs. The contest is going to be an interesting one, at least on the seats where the Shiv Sena led by Chief Minister Eknath Shinde is contesting against Shiv Sena UBT. In Buldhana, 3-time MP Pratap Rao Jadhav will contest on the Shiv Sena ticket facing Narendra Khedekar from Shiv Sena UBT. The former BJP MLA Vijayaraj Shinde has also filed a nomination as an independent candidate. Farmer leader Ravikant Tupkar is also a contestant here. In Yavatmal Vasham, the contest is between Shiv Sena's Rajshri Patil and Sanjay Deshmukh of Shiv Sena UBT. In Hingoli, Shiv Sena has replaced sitting MP Hemant Patil and fielded Baburao Kadam Kohalikar against former MLA Nagesh Patil Ashritkar from Shiv Sena UBT. The poll battle in Amravati and Nanded is also worth watching here. In Amravati, BJP has decided to field sitting MP Navneet Rana, who had contested earlier as an independent candidate supported by the Sharad Pawar-led NCP. She will face opposition from Congress's Balwant Wankhede and Dinesh Boob of the Prahar Party. On the high-profile Nanded seat, the Congress may feel some pressure due to the recent switching of senior leader Ashok Chauhan to the BJP. The Congress has fielded former MLA Vasantrao Chauhan against sitting BJP MP Pratap Rao Patil. So that was the situation. Maharashtra, very important politically. 8 states going to polls. Very briefly, Santoshi, your take. देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था आपको। इस बार महाराष्ट्र की राजनीति एक नई स्वरूप में सामने आने वाली है, क्योंकि देखिए जो मेन धड़े हैं वहां के, चाहे एनसीपी हो चाहे वो शिवसेना हो, वो बिल्कुल बट करके अलग अलग बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इस बार जो सीटें हैं वहां की, वो बहुत कुछ तय करेगा, वहां की राजनीति को निर्धारित करेगा आगे के समय के लिए। जी बिल्कुल। एंड संतोष कुमार जी, you visited our studios today and threw light on various issues and enlightened our listeners with your valuable inputs. Thank you so very much indeed. और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे संवाददाताओं और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप लोकसभा सीट की तय तिथि पर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं।